Okay, so very good evening to all of you, and I welcome you all on behalf of Nahata Professional Academy for your strategic management revision for January 25 exams. I'm Chartered Accountant Deepak Mulchandani, the faculty for the subject. This formal introduction is for people going to view this, who are going to view this for the first time. Okay, so considering that we are starting today because there was a glitch yesterday, so let me just take those things first. First things first is this will be a revision. Okay, so the moment I say the word revision, so I mean to say that you should be having some knowledge of things about it. So my agenda would be to understand the concept of each chapter. First thing, we will have question and answer writing sessions. We will try to study scenario based cases to make you MCQ ready, because what has happened is September exam has happened, and there they were आस्किंग गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. तो जिस प्रकार के कॉन्वर्सेशंस आपके मेरे क्लासेस में हुए हैं उसी प्रकार के क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड आए. आप लोगों के पास ऑलरेडी मेरे नोट्स हैं और आईसीआई का स्टडी मटेरियल है. our studies have been done through the ICI module continuously. Then my notes are also there with you. What I will do with you today is I will share with you the revision slides which each chapter I will prepare. So today will be the first chapter. We will also discuss scenario based questions from study material also. Track is clear? Give me an okay. एजेंडा कोशिश करेंगे एक आध दो बड़े चैप्टर है वो 2 दिन चलेंगे, बाकी एक एक दिन में चैप्टर इजीली हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से. स्टिल इफ इट स्पिल्स ओवर आई एम देयर विथ यू, सो डोंट वरी ऑन दैट. तो आज अगर मैं बोलूँ 6 लेक्चर या 7 लेक्चर हैं तो हो सकता है वो 8 भी हो जाए, 9 हो जाए, बट 7-8 लेक्चर आई प्रिज्यूम. ओके, सो आई प्रिपेयर्ड अ प्रेजेंटेशन फॉर यू टू गिव यू अ फास्ट ट्रैक व्यू, और ये प्रेजेंटेशन स्लाइड्स भी आपके पास पहुंचेंगे एज आई सेड अर्लियर. सो लेट्स गेट ऑन टू इट. Okay, so एक एक चैप्टर का ही होगा यार मुस्कान. दैट इज लॉजिकल, आई जस्ट सेड ना. तुम गजब ही हो यार, सबके सब सुधरे नहीं हो अभी तक, है फाइनल की तरफ आ रहे हो. चलो, सो विदाउट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम, सर, strategic management chapter 1, which talks about basically the word strategy, strategic levels, what is strategic management, what are the benefits, what are the limitations, and what are the various strategic levels. And under that definition we understand concepts like vision, mission, objective, strategic intent, business definition, business model. ये सारी बातें आपके मेरे फर्स्ट चैप्टर में थी यार. मेरे को हाँ ना यस नो बोलते चलना आप लोग. हाँ, यू नो हाउ आई वांट. सो ये एक स्लाइड एक ओवरव्यू की है. ओके, सो देयर आर 3 levels of strategy which we make: corporate level, business level, and functional level. Corporate level strategy talks about what business we should be in. It is made at the topmost level. Business level talks about the strategies which we made at the mid level, which we decide tactics to beat the competition. And functional level is operational method to implement those tactics. Correct? These are the levels of strategy which we will make for any business and an organization. Correct? Now under that, when you get into a business, you have stages of business life cycle. आपको याद हो तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल करके मैंने आगे चीज पढ़ाई थी. नाउ अब मैं क्या थोड़ा सा ऐसा मिक्स करूंगा ताकि आपका एक ओवरव्यू और अंडरस्टैंडिंग बेटर बन जाए इस चीज की. करेक्ट? हेलो, हाँ या ना? इतना समझ में आ रहा है कि नहीं? Correct. So now when you get into the situation of business, so it is early stages when you introduce the product. So product life cycle कितनी स्टेजेस से चलता है भाई? 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से. जल्दी जल्दी बताओ सर. 4 स्टेजेस से चलता है सर. नंबर 1, इंट्रोडक्टरी स्टेज, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन. अगर मैं आपको याद दिलाऊं, इंट्रोडक्टरी, ग्रोथ, मेच्योरिटी, डिक्लाइन से यहीं से एक कॉन्सेप्ट भी कनेक्ट होता है, और वो कॉन्सेप्ट कनेक्ट होता है आपका मेरा बीसीजी मैट्रिक्स. इफ यू रिमेंबर, बीसीजी मैट्रिक्स याद है?
बीसीजी मैट्रिक्स सर अब याद वाद कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, सुना सुना सा लग रहा है। तो वो कौन से दो एक्सेस को बेस बना के एक मैट्रिक्स बनता है? गेस करो, गलती करोगे चलेगा मेरे को, गेस करो। व्हाट टू एक्सेस आर टेकन बाय बीसीजी मैट्रिक्स टू डेवलप अ मैट्रिक्स? हाँ वेरी गुड अभय, ग्रोथ एंड शेयर, वेरी नाइस। इट्स अ ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, करेक्ट, इट्स अ ग्रोथ शेयर, ग्रोथ शेयर, ग्रोथ शेयर मैट्रिक्स, करेक्ट। तो उसी में इंट्रोडक्टरी स्टेज जो थी उसको हम क्वेश्चन मार्क बोलते थे, ग्रोथ को स्टार बोलते थे, मेच्योर को कैश काउ बोलते थे, और क्वेश्चन मार्क को डॉग बोलते थे। यू रिमेंबर? सो बिजनेस भी 4 स्टेजेस पे जाता है, तो इसी के अंदर आपको मेरे को अर्ली स्टेजेस, ग्रोथ स्टेजेस में हमारे को, अभी हम आगे पढ़ेंगे बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजीज में मार्केट पेनिट्रेट कैसे करें, ग्रोथ स्टेज में ग्रोथ एक्सपेंशन करें। एक ग्रोथ और एक्सपेंशन में तुमने मैंने बातें की हुई है, एक्सपेंशन के अंदर इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, सुने हुए लग रहे हैं या भूला हुआ है सब? इंटेंसिफिकेशन एग्जिस्टिंग बिजनेस पे काम करते हो, डाइवर्सिफिकेशन बेटर आगे नए नए बिजनेस में जाते हो, कॉन्सेंट्रेट, कॉन्ग्लोमरेट, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ऐसा कुछ याद आ रहा है? फॉरवर्ड, बैकवर्ड। फिर स्टेबिलिटी के अंदर आता है, एज यू नो कंटिन्यूसली सेम बिजनेस को मेंटेन करना, इंक्रीमेंटल इंप्रूवमेंट ऑफ फंक्शनल परफॉर्मेंस। और उसके बाद डिक्लाइन में रिट्रेंचमेंट, टर्न अराउंड, टर्न अराउंड के अंदर डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन, सब मैंने बताया हुआ है आपको। वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग, सो डोंट वरी ऑन दैट। फिर आ रही थी सर कंपटीशन में जब उतरेंगे तो प्रोडक्ट किस तरीके से दोगे, तो कॉस्ट लीडरशिप आता है, डिफरेंशिएशन आता है, फोकस आता है, जॉइंट वेंचर, मर्जर, एक्विजिशन, स्ट्रेटेजिक अलायंस, ये तमाम बातें, और उसके बाद इनको इंप्लीमेंट करने की चीजें। दिस इज दी ओवरऑल यूनिवर्स, व्हाट आई मे से, ऑन विच वी हैव टू वर्क ऑन। ओके, तो आज स्टार्ट है, थोड़ा टाइम लगेगा पर एक आध दिन में रिदम में आ जाओगे। यही ऑब्जेक्टिव था आज तुम लोगों के साथ बैठ के तुमसे डिस्कस करने का, कि तुम्हें थोड़ा सा याद आ जाए तो फिर अपन उसको आगे लेके चलेंगे। ओके, सो सर व्हाट इज अ स्ट्रैटेजी? सर स्ट्रैटेजी इज कॉन्शियसली कंसिडर्ड, फ्लेक्सिबली डिजाइन स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट एंड एक्शन। आपको अगर ऐसा कोई वर्ड याद आ रहा हो तो, consciously considered, flexibly designed scheme of corporate intent and action to achieve effectiveness, mobilize resources, direct the effort and behavior, handle events and problems, and perceive and utilize opportunities for survival and success. ऐसा सीसी और एफडी है जिसका सही ध्यान नहीं रखा तो अकेला मैनेजिंग डायरेक्टर ही पिट के मरेगा। AMDHMP नोट्स में कंपेयर कराना पड़ेगा क्या मुझे साथ साथ पैरेलली, कि नोट्स साथ साथ खोल के बैठे हो तो दिख रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जल्दी बताओ, नोट्स ओपन करके रखे या नहीं रखे हैं? हाँ, बाकी सारे बच्चों नोट्स बताओ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? नोट्स में मैच हो रहा है? ये सेकंड या थर्ड पेज पर होगा? मैं पैरेलली ओपन करके रखूं क्या नोट्स? सर सबसे पहले स्ट्रैटेजी और पॉलिसी के बीच में डिफरेंस था, और यहाँ आकर कंसेप्ट पे आ गए थे, पेज नंबर 1.3 पे, और ये 1.4। करेक्ट, AMDHPM। तो अब अपन दोनों चीज पैरेलल चलाते रहेंगे, बस जैसा आपको ठीक लगे। अब उसके बाद डिफाइन करी थी स्ट्रैटेजी ने, तो अब इसका लॉन्ग रेंज ब्लू प्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन डिजायर्ड इमेज, डेस्टिनेशन, डायरेक्शन एंड व्हाट इट वांट्स टू बी, व्हाट इट वांट्स टू डू एंड वेयर इट वांट्स टू गो। ये एक की थी। दूसरी विलियम एफ ग्लोएक की थी, यूनिफाइड कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्लान डिजाइन टू अश्योर दैट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द एंटरप्राइज आर अचीव। ये विलियम एफ ग्लोएक की डेफिनेशन थी। नाउ टेल मी वन थिंग, मेरे को आप रिस्पॉन्स देते हैं। स्ट्रैटेजीज आर पार्टली प्रोएक्टिव एंड पार्टली reactive. Sir, partly proactive on account of identified opportunities and threats, and reactive on account of unknown, unanticipated developments, market positions, fresh strategic maneuvers, or competitor responses, or the responses and feedback from the customer. तो कुछ चीजें आप शुरुआत में प्लान करके चलते हो और बाद में उनमें से कुछ चीजों को आप इग्नोर कर देते हो, कुछ चीजों को कंटिन्यू करते हो। क्यों? बिकॉज यू नो
दिस इज गोइंग टू हेल्प एंड दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प, यस और नो। यहीं से रिलेटेड अब अगर आप स्टडी मटेरियल में आपके देखोगे तो स्टडी मटेरियल में इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं वो आपसे। स्टडी मटेरियल ओपन है क्या साथ में? स्टडी मटेरियल में जाओ, पेज नंबर 1.32 नहीं 1.31, यमी फूड्स एंड टेस्टी फूड्स। ओपन करूं क्या साथ में स्टडी मटेरियल? अब मेरे को ये चीज बताओ, आप साथ साथ स्टडी मटेरियल ओपन करूं या पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा दूं फिर स्टडी मटेरियल पे जाऊं? ये मेरे को आप बता दो जरा, कि पहले एक बार पूरा कॉन्सेप्ट रिवीजन करा दूं फिर स्टडी मटेरियल पे चलूं, या बीच बीच में ऐसा करता जाऊं? जल्दी बताओ। कॉन्सेप्ट पहले, मैक्सिमम से कॉन्सेप्ट पहले। हाँ पहले कॉन्सेप्ट कर लेते, फिर मॉड्यूल के क्वेश्चंस और वो सब मैच करा दूंगा कि इस कॉन्सेप्ट से ये निकल कर आ रहा है, तो उससे रिदम और फ्लो बना रहेगा। ओके, कैमरा को थोड़ा सा नीचे करें, मैं जरा ज्यादा नीचे दिख रहा हूँ। एक मिनट बच्चों, एक मिनट के लिए पॉज करो, जस्ट अ मिनट। Okay, so as decided, we will pick concepts and then we will go to this. ठीक है, so strategies are partly proactive and partly reactive. Proactive on account of identified opportunities and threats. Reactive on account of unknown, unanticipated developments, fresh strategic maneuvers. Maneuvers बोले तो, strategic maneuver बोले तो, changes, competitors' actions, feedback from customers. Correct? ये वाला डायग्राम आपके स्टडी मटेरियल में थोड़ा अलग बना हुआ है, ध्यान देना। स्टडी मटेरियल में डायग्राम मतलब ऐसा है कि स्टडी मटेरियल में बहुत सिंपल बॉक्स टाइप पे बना हुआ है, पर ये अबंडेंट स्ट्रैटेजी फीचर यही समझाते हैं कि इन चीजों को आपने, सी यू स्टार्टेड विद समथिंग लाइक दिस, उसमें से जो चीज पसंद नहीं आई आपने उनको लेफ्ट, करेक्ट, एंड जो रिएक्टिव नए पॉइंट्स होते हैं, न्यू थिंग्स एडेड। तो strategies are partly proactive and partly reactive. I hope my audio video is clear to all of you. Payal is saying it's not clear. How about others? All clear? ठीक है, फाइन फाइन सर। Proactive on account of identified opportunity, threats and strength and weakness. Reactive on account of unknown unanticipated developments. It happens a lot of times that when whatever thought was not goes as per the plan. A portion of a company strategy is always developed on the fly. मार्केट में उतरने के बाद ही तैयार होगी। आपने भी तो बहुत अच्छे अरमानों से सोच के सीए फाउंडेशन क्लियर करी थी, इतने दिन में ये पढ़ लूंगा, इतने दिन में ये पढ़ लूंगा, इतने दिन में बोथ ग्रुप की तैयारी कर लूंगा, मस्त चिल्ड आउट रहूंगा, और अब आकर देखते हैं तो क्या सोचा था और क्या ही हुआ। सो व्हाट यू आर टुडे इज प्योरली प्रोएक्टिव और अ मिक्स ऑफ प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव? टेल मी। What you are today is purely proactive or a mix? Sir, mix of both. Exactly. Correct. This is Mr. Peter F. Drucker's statement, which has been missed out from your study material right now, but should be seen because it has a lot of value into it. It is not a box of tricks or a bundle of techniques. It's not a jadoo ka pitara, abracadabra, gili gili chu. It is analytical thinking and commitment of resources to action. Quantification alone is not planning. Some of the most important issues in strategic management cannot be quantified at all. तो इसका मतलब आब्राकडाब्रा करने से स्ट्रैटेजी नहीं बनती. इट्स एनालिटिकल थिंकिंग एंड कमिटमेंट ऑफ रिसोर्सेज ऑफ एक्शन एंड सम थिंग्स मे नॉट बी क्वांटिफाइबल एट ऑल. नाउ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात करते हैं अपन. तो नाउ वी हैव अंडरस्टूड स्ट्रैटेजी. स्ट्रैटेजी इज कॉन्शियसली कंसिडर्ड फ्लेक्सिबली डिजाइन स्कीम ऑफ कॉर्पोरेट इंटेंट एंड एक्शन टू अचीव इफेक्टिवनेस, mobilize resources, direct the effort and behavior, handle events and problem, perceive and utilize opportunities for survival and success. ये डेफिनेशन क्या कहती है? स्ट्रैटेजी. ये कहीं नोट करके रखना. स्ट्रैटेजी
is not equal to strategic management. They both are different things. Okay. Now I am talking about strategic management. Strategic management refers to the managerial process, one, of forming a vision, two, setting a mission, number three, creating a mission कहाँ गया? Oh, creating a mission, setting of objectives, number four, crafting a strategy, number five, implementing and executing the strategy, number six, and initiating corrective adjustments in all the levels as required, seven. So how many components we have in strategic management? One, two, three or seven? फटाफट टाइप करो. Seven. So managerial process of forming a vision, creating a mission, setting of objectives, crafting the strategy, implementing and executing, and initiating corrective adjustment necessary at all levels. सेवन. अब एक एक को चुन चुन के समझना है तुमको मेरे को. उससे पहले आप और मैं इस पे चलते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम. ना इंपॉर्टेंस ऑफ एसएम के अंदर इट एक्ट्स एज अ path finder to various business opportunities. Acha, can you please tell me one thing now? Give me an answer to this before going into this importance. Can you guarantee me success after applying strategic management? Can you give me a guarantee that after applying strategy everything will go perfect? No. But can you say that you are better prepared for the uncertain future? Only aware of the future uncertainty or better prepared for the same? मेरे सेंटेंस में डिफरेंस है. बेटर प्रिपेयर्ड या ओनली अवेयर? यस, बेटर प्रिपेयर्ड. वेरी गुड. सो एसएम का फायदा क्या है? एसएम का फायदा वही है जो अभी आपने बताया. इट डज नॉट एलिमिनेट्स अनसर्टेनिटी, इट डज नॉट गारंटीज अ सक्सेस, but it makes you better prepared for uncertain future. Okay, so it acts as a pathfinder to business opportunities, number one. आपके यहाँ पर नोट्स में देखोगे तो ये सब वर्ड्स हाईलाइटेड होंगे ऑलरेडी. सर्व्स एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म, आपकी कंपनी को बचाने के लिए. आपको क्या लगता है जो कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रही थी आज भी वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रही होगी या वो एआई की तरफ चली गई होगी? और अगर वो एआई की तरफ नहीं गए होंगे तो क्या सर्वाइव होंगे या ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं करेंगे? करेक्ट. सो दिस इज एक्टिंग एज अ कॉर्पोरेट डिफेंस मैकेनिज्म कि अपने आप को लगातार बदलते रहना. इट हेल्प्स द फर्म टू अवॉइड कॉस्टली मिस्टेक्स, महंगी गलतियों से बचाएंगे. इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर ऑल द मेजर डिसीजंस ऑफ एन एंटरप्राइज, नंबर फोर. अनसर्टेनिटी मेक स्ट्रैटेजी एंड स्ट्रैटेजिक कंडक्ट एसेंशियल. आज की तारीख में कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं बचा जो ये कहे कि भैया इतने साल आराम से निकल जाएंगे. एवरीबडी इज ऑन अ कांस्टेंट सर्वाइवल चेंज कि व्हाट डू आई डू नेक्स्ट. It helps you to define realistic objectives and goals and makes the organization proactive rather than reactive. P for proactive. P मतलब पहले से तैयार, reactive मतलब हो जाने के बाद. And it helps you to deliver superior performance over its competitors. मैं अगर तुमसे सिर्फ एक सिंगल लाइन पूछूं, what is the objective of SM? वन लाइन आंसर चाहिए मुझे, मतलब गिनती के 5 या 6 शब्दों में बताओ व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट. मैंने इंपॉर्टेंस नहीं पूछा, ध्यान रखना, बी वेरी पर्टिकुलर ऑन दीज थिंग्स. टू बेटर प्रिपेयर फॉर फ्यूचर, नो. मेक यू बेटर प्रिपेयर फॉर अनसर्टेनिटी, स्टिल नॉट गेट द राइट आंसर. ये मैं क्लास में अनेकों बार बोल चुका हूं, इफ यू रिमेंबर. एक जने ने सही जवाब दिया है मुझे अभी.
Sir, the sole purpose of strategic management. No, that where we are and where we want to reach is vision mission related. यही सुधरवाना है मेरे को क्लास के अंदर. Better utilization of resources about efficiency and effectiveness. No. Sir, the sole purpose of strategic management is to achieve CA, competitive advantage. To achieve CA, competitive advantage, and deliver superior value to target customer. Correct? तो दो चीज. Objective of SM is not equal to importance of SM. तुम लोगों की प्रॉब्लम अब नए प्रकार की आने वाली. जब तुम पढ़ोगे ना तो तुम इधर का आंसर उधर चिपकाओगे, क्योंकि इतना सारा आ जाएगा ना, इसमें ये फिट कर दिया, इसमें ये फिट कर दिया, याद नहीं आएगा. ये लिखना है पता है, पर क्या लिखना है वो भूलते हो. तो ऐसी छोटी छोटी चीजें नोट करते चलना. It is CA, competitive advantage. Correct? आया नहीं आया? करेक्ट. आइए अब बुराइयां करो, आ जाओ. नंबर 1, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बिजनेस के बारे में डिसीजंस लेना. एनवायरनमेंट इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड टर्बुलेंट. इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड how it will shape its future. Number 1, it's a time consuming process. Number 1, it's a costly process, and whatever you think your competitors may do, exactly things may not go in the same way. Correct? It is difficult to clearly estimate the competitive response of a firm strategy. This becomes your limitation. Hello, आया कि नहीं आया? Done? Fair enough. आइए. Let's come to the strategic levels of organization. Sir, what are the strategic levels of the organization? 3 levels, sir. Corporate, business, and functional. Correct? Corporate level strategy decides. Acha, how many more, matlab, how many people will you have at the corporate level? Too much या very few? Sir, few. Okay, they will talk about the profit and loss or the kind of business they have to get in. So the kind of business we need to get in. Correct. Then once you decide that what kind of business we need to get in, then we get into the situation of business strategy. Correct. Business strategy is what? Tactics to beat the competition. How will you beat your competitors? Correct. Then once you decide that these are the tactics, now on ground you have to decide that how these tactics will be implemented. So operational methods to implement those tactics will be functional strategy. Correct or not? चलो तो एक छोटी सी एक्सरसाइज एवरीबडी हैज टू डू विथ मी विदाउट लुकिंग एट योर किताब, विदाउट लुकिंग एट योर बुक. प्लीज डू दिस एक्सरसाइज विथ मी. यू हैव 3 आंसर्स. ओके, corporate, business, and functional. So the first one, Idea Cellular merging with Vodafone. Okay, Idea and Vodafone merging together. Are they starting a new business or they are already in business and they want to fight Airtel and Jio? They are already in business. So if they are already in business, so should the answer be corporate strategy?
or no? So then what should be the answer? Sir, answer should be business strategy, sir. बराबर. Reliance entering into telecom, second one. Sir, corporate strategy. Now those who are not getting it, for example, Pratiksha, you have to refer your study material, you have to refer my notes. This kind of an exercise was also done in the class also बेटा. अभी मैं पूरा समझाऊं कैसे. एक लाइन समझ लो फटाफट, कोशिश करता हूं. Before entering into any business, what you decide, so that is a corporate level decision. Once you have entered into the business, then you are talking about business level decision making. तो आज आइडिया अपना धंधा चालू करने नहीं गया, आइडिया का सेल्यूलर सर्विस पहले भी था, वोडाफोन का भी था, ये दोनों साथ आए बचने के लिए ताकि एयरटेल और जियो मिलकर इनको खत्म ना कर दें. सो टैक्टिक्स टू बीट द कंपटीशन. ओके, ठीक है. रिलायंस एंटरिंग इनटू टेलीकॉम इज कॉर्पोरेट, नो डाउट अबाउट दैट. HUL planning to enter into business of water filters. HUL entering into water filters, corporate, correct. HUL starting Ayurvedic range Ayush. HUL पहले भी बना रहा था, अब सिर्फ आयुर्वेदिक फ्लेवर बना रहा है. So it becomes a business decision. Vodafone Global acquiring Hutch Telecom India. So I was anyways in foreign, now I'm entering into India. Business decision. Parle starting its outsource manufacturing. Few people will come with the answer of functional. I did not say that Parle thinking about outsourcing. Okay, so Parle is thinking and starting its outsource manufacturing. So they tried to beat the competition. So it is business. Yes, there is no concept of geographical location in this. You can't decide that on the basis of geographical location this is corporate or business. You have to see to the situation of the case and then take it. Airtel giving a new scheme of data and call to customers. Business. Fruity launching itself in different sizes. Different sizes. Why? 20 rupees bottle, 50 rupees bottle, 10 rupees bottle, 100 rupees bottle, 2-liter bottle, 500 ml bottle, 200 ml bottle. It is not because I have functional. I want to beat competition. I want to fight with cold drinks business. So there is no answer of functional here. अब बच्चे पूछते एक आध आंसर फंक्शनल का भी बताओ. Under functional, if I say, if I am planning to change my customer care company, if I am planning to change the security guard of my company, if I am changing the Wi-Fi service provider, tell me one thing. Domino's decided to change the packing material of their pizza boxes because they wanted to get a better rate from the other manufacturers. So Domino's changing the packing material. Come on. Corporate business functional. Packing material supplier. कॉन्सेप्ट क्लियर. कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शनल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं? करेक्ट. अब इसी को मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूं आपको क्योंकि आपके मॉड्यूल में है कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी. फटाफट देखेंगे. इट कंसिस्ट ऑफ द सीईओ, सीनियर एग्जीक्यूटिव, बीओडी एंड कॉर्पोरेट स्टाफ. अब आप कॉर्पोरेट लॉ भी पढ़ चुके हो तो अब आपको पता चल रहा है मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोल रहा हूं तो कौन लोग की बात कर रहा हूं, सीईओ बोल रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं. करेक्ट. These individuals participate in strategic decision making within the organization. Their role includes defining the mission and goals, what business it should be in, allocating resources among different businesses,
formulating and implementing strategies that span individual businesses and provide leadership to the organization. So this one slide gives you an idea of corporate level strategy. काम की लग रही है स्लाइड्स या नहीं लग रही है ये बताओ, बैठ के बनाई है. Let's come to business level strategy. Business level, the development of strategies for competing in the individual business area. तो जिनको भी डाउट है वो ध्यान दें, individual business areas is responsibility of those in charge of different businesses called business level managers. The strategic role of these managers is to translate the statement of direction and intent that comes from corporate level into concrete strategies for individual business. बड़ा important sentence है, समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ. सेकंड वाला बुलेट पॉइंट. Okay. Now, where corporate level managers are concerned with strategies that span individual business level managers are concerned with strategies that are specific to a particular business. तीसरा बुलेट पॉइंट भी ध्यान से पढ़ो. कॉर्पोरेट लेवल का कवरेज ब्रॉडर है. सो कॉर्पोरेट लेवल इज ब्रॉडर एंड बिजनेस लेवल इज ब्रॉडर या नैरोवर. बताओ. सर इट्स नैरोवर सर. करेक्ट. वेरी गुड. Let's come to the third one, functional strategy. They are responsible for specific business functions and operations that constitute a company or one of its divisions. Functional managers nevertheless have a major role to develop functional strategies in the area that help fulfill the strategic objectives set by business and corporate level GMs, general managers. They provide most of the information that make it possible for business and corporate level general managers to formulate realistic and attainable strategies. So now tell me one thing. एनालिटिकल थिंकिंग और क्राउड मैनेजमेंट. एनालिटिकल थिंकिंग कौन से लेवल पे चाहिए और क्राउड और पीपल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस है, मतलब कौन से लेवल पर क्या लगेगा. एनालिटिकल थिंकिंग कौन से लेवल पे लगेगी और क्राउड मैनेजमेंट किस लेवल पे लगेगा. क्राउड मैनेजमेंट फंक्शनल लेवल और एनालिटिकल थिंकिंग. करेक्ट. वेरी गुड. नाइस टू हियर दैट. सो कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शनल हो गया. ये एक सिंगल स्लाइड है, फटाफट ये सिंगल स्लाइड मेरे सामने पढ़ो. ये तीनों को मैंने समराइज करके दिया है वापस से. एक 30 सेकंड में मेरे सामने पढ़ो और बोल दो डन, तो मैं आगे बढ़ूं, बिकॉज आई ऑलरेडी सेड ऑल दिस.
डन। डिसीजन मेकिंग हर जगह पर आएगी, पर कौन से लेवल के डिसीजन लेना है ये सबका अलग अलग जाएगा। डिसीजन मेकिंग तो हर लेवल पर है यार। Okay, done. Very good. So now we come to the next concept which is available in our chapter, and this happens to be the last concept. पर इसके अंदर एक चीज ध्यान रखना, content of study material is lesser स्टडी मटेरियल ने सिर्फ आपका विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं, ठीक है। कंटेंट इन आवर नोट्स इज अ बिट मोर एंड इट इंक्लूड्स बिजनेस मॉडल, बिजनेस डेफिनेशन। ये अपनी क्लास में भी बात हुई थी, अगर आपको याद हो तो। आपको क्या ही याद होगा, याद आ रहा है? करेक्ट। सो आई विल एक्सप्लेन ऑल, बिकॉज ये हमने रियलाइज करा था कि मॉड्यूल ने वो चीज डायरेक्टली नहीं दिखाई, पर कहीं ना कहीं उसके बारे में बोला ही है हमको। ओके बिट मोर देन स्टडी मटेरियल, ठीक है। अच्छा, सबका रूटिंग पॉइंट क्या होता है? अब आप एक बात बताओ, एक वर्ड मैंने सिखाया था, इंटेंट। इंटेंट कम्स फ्रॉम द वर्ड इंटेंशन। इंटेंशन बोले तो मंशा, मतलब व्हाट बेसिकली आई वांट टू डू। नाउ इंटेंशन is written somewhere on the website or somewhere, or it is in the mind? Tell me. Sir, intention is in the mind. Okay. Now when intention gets spelled out in the words, it comes in the form of vision and mission. Yes or no? Intention when spelled out in the form of words comes out in the form of vision and mission. Vision refers to फ्यूचर, ये फ्रेज मैंने बहुत बार बोला था क्लास में, फ्यूचर पीसीएमटी फोकस। नाउ यू टेल मी व्हाट दिस पीसीएमटी स्टैंड्स फॉर। हाँ, वो तो सबको पता है पीसीएमटी, मेरे को तो याद दिलवाना, पीसीएमटी स्टैंड्स फॉर व्हाट? रिवीजन चल रहा है। सर, प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट, टेक्नोलॉजी, वेरी गुड। तो विजन रेफर्स टू योर फ्यूचर प्रोडक्ट, कस्टमर, मार्केट एंड टेक्नोलॉजी फोकस। ओके, व्हाट डज मिशन स्टैंड्स फॉर? मिशन स्टैंड्स फॉर माय प्रेजेंट पीसीएमटी फोकस सर, my present product, customer, market, technology focus. Vision gives you an answer where you want to reach, correct? The final destination. Mission tells you what are you doing right now to reach that final destination. Where we want to be is vision, correct? And what are we presently doing is mission. V for vision, V for vichar, M for mission, M for maqsad. Is it ringing a bell? दिमाग में आ रहा है? Correct. So then business definition. So now when we went ahead, when you have a developed out of an intent, you have developed a vision and mission. Then there is a
when then you come to business definition. Business definition is you define what customer, what products will you sell, where will you sell, what will you do. That will be your business definition. And under that business, how will you make money is going to become your business model. हाँ हाँ, तिवारी जी कम्स अप. विजन इज इक्वल्स टू छत जहां पहुंचना है. मिशन इज इक्वल्स टू सीडी. ये लो, एक और क्रिएटिव आदमी आया है. विजन, छत, मिशन, सीडी. वाह 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 वाह. ओके, बिजनेस मॉडल तक आ गए. नाउ बिजनेस मॉडल के ऊपर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है. नाउ यू टेल मी, गोल्स आर ओपन एंडेड एट्रीब्यूट्स. दिस इज वेयर आई फाइनली वांट टू रीच. बट अगर उसको आपने क्वांटिफाइबल और डिफाइंड नंबर्स में दे दिया, सो दैट बिकम्स objectives. Objectives are specific performance targets. Goals are open-ended and objectives are specific performance targets. करेक्ट. मेरे हिसाब से आपको ये वाला स्क्रीन का एक स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहिए. इसमें पूरे चैप्टर की सारी मेन मेन बातें कवर हो गई. सीरी, टेक अ स्क्रीनशॉट. ये मैं आपको भेज दूंगा सब लोगों को, ठीक है. ठीक है, कम टू द नेक्स्ट वन. अब आप मेरे सामने फटाफट इंटेंट पढ़ के जाओ. जल्दी से मेरे को पढ़ के दो. Sir, intent refers to the purpose of what the organization wants to achieve, what they want to do, and why they want to do. Objective are specific performance targets, Mridul. थर्ड वाले बुलेट पॉइंट की खासियत पढ़ो. डन. यस और नो.
वेरी गुड. अब इसी चीज को स्ट्रैटेजिक इंटेंट, द ब्लूप्रिंट ऑफ कंपनी फ्यूचर. अब इसी का एक और समराइज वर्जन है. द ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर पोजीशन डिस्क्राइब्स वेयर द ऑर्गेनाइजेशन वांट्स टू लैंड. Mission is what business the company undertakes. Business definition, what product, customer, market, and technology you are using. Where you will earn income, what will be your customer and financial details. And the end result is your goal and objective. कौन है ओपन एंडेड, गोल या ऑब्जेक्टिव? जल्दी बताओ. Which is more open ended, goal or objective? Yes, very good. डन. इंटेंट के टुकड़े टुकड़े करके समझ लिया पूरा. अब विजन, अब इसी की डिटेलिंग पढ़ रहे हैं अपन. Top management's view about the company's product, customer, market, technology focus constitutes a strategic vision. A vision points a particular direction, makes a path, and molds the organization identity. Correct? It tells you who we are, where are we now, using the mission statement for deciding the long-term course where we are going, communicating the vision in clear terms to arouse organization-wide commitment. साथ में फोटो वोटो निकालने मैंने अच्छे से. फोटो देखते हो कि नहीं देखते हो तुम लोग, ये बताओ. डू यू लुक एट दिस फोटो? डज इट मेक सेंस टू यू? Okay. Sir, mission. It gives you an answer to the question, what business are we in? Mission statement is typically focused on the present business scope, who we are, what we do, product, customer, market and technology focus. Vision and mission का एक comparison. Mission serves an ongoing and time independent guide. The vision describes the future identity. ये words बहुत काम के हैं. It provides a path to realize the vision in line with its values. It can galvanize. Galvanize मतलब spark. आपको याद होगा, एट शोड योर वीडियो क्लिप. बनना चाहते हो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी, खोल दे चार और फैक्ट्री, शक्ति परिवार क्या राय है? ये क्या था? मिशन था या विजन था? हाँ. अब बेस्ड ऑन दैट विजन दे से आई वांट टू पिक अप. ना ना, दैट वाज अ विजन. आशीष, इट वाज नॉट मिशन, दैट वाज अ विजन. नाउ बेस्ड ऑन दैट यू से आई वांट टू पुट अप अ फैक्ट्री. आपने पहले एफएम नहीं पढ़ा था, अब मैं बोल सकता हूँ एफएम के टर्म्स. I will identify a tax holiday location where my raw material and all the things will be easily available and my cost of production will come down. So now deciding that location of the factory and the technology to be used in the factory is what decision? Vision or mission? Correct? And under that mission, specifically step by step I take various actions. So those step by step actions are all called what? Step by step actions will be called what? बोलो बोलो. Tell. Objectives, correct. Specific performance targets. यहाँ आकर फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका मेरा. विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, इंटेंट, बिजनेस डेफिनेशन, बिजनेस मॉडल. अब स्टडी मटेरियल के छोटे छोटे एमसीक्यू निकालो और फटाफट मेरे साथ सॉल्व करो जरा अभी के अभी. स्टडी मटेरियल चैप्टर नंबर 1. अभी चेक करते कि तुमको कितना आया. स्ट्रेटेजी इज गेम प्लान टू यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए. कोई भी अपना स्टडी मटेरियल ओपन नहीं करेगा. ओपन करोगे पाप लगेगा, कसम है तुमको तुम्हारे अटेम्प्ट की.
Okay. Strategy, the game plan used for which of the following? Sir, all of the above. अब मैं आपको बात याद दिलाता हूँ, ये जो स्ट्रैटेजी की डेफिनेशन है, ये वही है, गेम प्लान ऑफ द मैनेजमेंट टू अचीव इफेक्टिवनेस, मोबिलाइज रिसोर्सेज, डायरेक्ट द एफर्ट एंड बिहेवियर, हैंडल इवेंट्स एंड प्रॉब्लम एंड परसीव एंड यूटिलाइज अपॉर्चुनिटीज फॉर सर्वाइवल एंड सक्सेस। अब क्या होता है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं मिलेगी, तो उन्होंने क्या करा, कुछ कंटेंट आपके स्टडी मटेरियल के चैप्टर में से गायब किया है, पर उससे रिलेटेड एमसीक्यू मिलेंगे आपको। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? स्ट्रैटेजी इज, बताइए सेकंड क्वेश्चन। 1 2 3 4। Sir, option number 2, it's not always perfect, flawless and optimal. Correct. Strategy is question number 3. Sir, it's a blend of proactive and reactive. Correct. Reactive strategy can also be termed as 1 2 3 4 बताओ इसमें 4A 4B 4C 4D करो या 4 1 4 2 4 3 4 4 ऐसा लिखो, कंफ्यूज होता हूं नहीं तो मैं। रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इज अडेप्टिव स्ट्रैटेजी। कई बच्चों का आंसर इसमें डायनामिक आएगा। डायनामिक मिक्स, डायनामिक स्ट्रैटेजी मतलब प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव बोथ होता है, ये ध्यान रखना, तो ये मत समझना, तो गलती करोगे अगर आप ऑप्शन 4 लोगे तो। फॉर्मुलेशन ऑफ स्ट्रैटेजी एंड द इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस इज अंडरटेकन बाय whom? स्ट्रैटेजी एक ही लेवल पे बनती है या सारे लेवल पे बनती है, और इम्प्लीमेंटेशन एक लेवल का है या सब लेवल का है, पहले ही बताओ। तो फिर आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। सबको अपने अपने लेवल पे अपनी अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट और इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। छठा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग एंड डेवलपिंग रियलिस्टिक एंड अटेनेबल स्ट्रैटेजीज? सर, सबको ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी जो रियलिस्टिक हो, अटेनेबल हो और वो हो। करेक्ट, तो आंसर इज ऑप्शन 4। Seventh, which of the following manager's role is to translate the general statements of strategies into concrete action for individual businesses? सेवन का आंसर सोच के बताना मेरे को, ध्यान से पढ़ना। To translate the general statement strategies into concrete action of their individual businesses. Good question. Answer is functional manager. अब आप बोलोगे बाकी भी तो सही है, पर नहीं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट और सेंटेंस को पढ़ के चलना पड़ेगा आपको। विच स्टेटमेंट शुड बी, नहीं उदय, क्या लिखा है, इंडिविजुअल बिजनेसेस कॉन्क्रीट स्ट्रैटेजीज, तो वहां पे तो बिजनेस लेवल आंसर ही नहीं है तुम्हारे पास। कॉर्पोरेट बिजनेस एंड फंक्शनल, आपके पास आंसर कहाँ है, यहाँ पे ऑप्शन कहाँ है उदित? और अभी वापस फंक्शनल मैनेजर पढ़ के जाओ ना। चलो वापस चलते हैं अपन अपने पीपीटी में, फंक्शनल मैनेजर का काम देखते हैं, पीछे चलते हैं। आया? प्रैग्मेटिक मतलब एक्सेप्टेबल टू ऑल, ऐसे डिसीजन जो सबके लिए सही हो, एक्सेप्टेबल टू ऑल। विच स्टेटमेंट शुड बी क्रिएटेड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बताओ।
यस, सबसे पहले विजन। अच्छा, और इसमें इंटेंट होता तो वो क्या होता फिर? आंसर इंटेंट होता या विजन होता? वेरी गुड, आंसर तब इंटेंट होता सर। क्वेश्चन नंबर 9, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट enables an organization to do dash instead of companies just responding to threats in their business environment. प्रोएक्टिव, करेक्ट। कुछ बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर 2 भी आया होगा इसमें, क्योंकि उसने यहां थ्रेट लिखा है, तो ये जस्ट रिस्पॉन्डिंग टू थ्रेट्स बेसिकली रिएक्टिव है, तो यहां आएगा प्रोएक्टिव, करेक्ट। तो 9A, 10th का, रीड द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। कौन से 2 ट्रू हैं स्टेटमेंट्स इन 3 में से? स्ट्रैटेजीज रिजिड होती है, फ्लेक्सिबल होती है? तो इसलिए ये तो गलत हो गया। बाकी एक्शन ओरिएंटेड होती है, शॉर्ट रेंज लॉन्ग रेंज दोनों होती है, तो फर्स्ट और सेकंड। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद 11th, फॉर्मुलेटिंग, इम्प्लीमेंटिंग, इवेल्युएटिंग क्रॉस फंक्शनल डिसीजंस। क्रॉस फंक्शनल मतलब एक डिपार्टमेंट या मल्टीपल डिपार्टमेंट्स? तो ये किसका काम है? स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का काम है, करेक्ट। इट अलाउज एन ऑर्गेनाइजेशन टू बी मोर, 12th का, प्रोएक्टिव, वेरी गुड। हम आज का सेशन यहां पे रोकेंगे। आज आप घर पर 4 सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, 5। सबसे बेस्ट टाइम बताऊं? अभी के अभी 15 मिनट में 5 कर लेना, तो अपना हो जाएगा। 5 में कल कोई दिक्कत आती तो जरूर पूछो, नहीं तो 5 में कल 5 मिनट में आपके साथ लूंगा, ठीक है? सो हाउ वाज द सेशन फॉर यू टुडे? डिड यू लाइक इट? समझ में आई चीजें? चलो, वेरी गुड। तो we will continue these sessions so that you all are in command of your subject along with practice. हाँ, slides will be shared with you, no doubt about that, gradually. एकदम से आज अभी immediately नहीं मिलेगी, but these slides will be coming into your app, so don't worry, okay? And I will be taking your sessions in evening only, so that you are relaxed after the day and I can also take it after the day, okay?